अभी आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दे आर टेलिंग अस दैट द वर्ड कार्बन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। ठीक है, इट इज अ नॉन मेटल, इट इज एन एलिमेंट। जैसे हमारे बाकी एलिमेंट्स है सोडियम पोटेशियम, इसी तरीके से कार्बन भी एक एलिमेंट है विच इज अ नॉन मेटल, एंड द वर्ड दैट इट इज मेड अप ऑफ इज लैटिन वर्ड कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल। The amount of carbon present in the earth's crust and the atmosphere is very very small. एटमॉस्फेयर में तो बहुत छोटा है, कितना है, किसी को याद है कितना था? 0.04। अब 0.04, राइट, है ना, छोटा सा वो कार्बन का कंपाउंड, छोटा सा कार्बन, जो कि हमारे 71% नाइट्रोजन, 21 आई थिंक 78 और 79 शायद 21% ऑक्सीजन से मिलकर बना है, टुगेदर मेकिंग 99%, टुगेदर मेकिंग 99% ऑफ इट। तो 1% जो एक्स्ट्रा गैसेस बचती हैं, उसमें से सिर्फ 0.04% इज कार्बन। और ये जो कार्बन वहां प्रेजेंट है, ये इतना सा ही ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्रिएट करता है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है ना। तो एटमॉस्फेयर में द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज प्रेजेंट इज वेरी वेरी लेस। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द earth crust contains 0.02% carbon in the form of minerals, and the atmosphere it is 0.03% of carbon dioxide. In spite of this small amount of carbon available in nature, carbon element has immense importance. ठीक है, आ गई बात समझ में? चलें अभी आगे। The importance of carbon can be gauged from the fact that we are ourselves made up of carbon compounds called organic compounds. हमें भी organic compounds कहते हैं, तो हम भी कार्बन से ही बने हैं। All the living things, plants and animals are made up of carbon based compounds which are called organic compounds. तो सब ये जो living organisms है जिनमें भी life है, हम इन सब life containing organisms को carbon compounds कहेंगे, क्योंकि इन सब में carbon present है। A large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds, जैसे कि grains, pulses, sugar, tea, coffee, fruits, vegetables, they are also carbon compounds. The material like cotton, silk, wool, nylon, polyester, they are also carbon compounds. The fuels like wood, coal, petroleum, LPG, natural gas, CNG, compressed natural gas, petrol, diesel, cooking food to used to cook food, they're also carbon compounds. And paper, rubber, plastic, leather, drugs, dyes, they are also all carbon compounds. It is clear that carbon element plays a vital role in our daily life. ठीक है बच्चे, clear? We can test the presence of carbon in a material on the basis of the fact that carbon and its compounds burn in air to give carbon dioxide, which turns lime water milky. So if they ask you, how do I know paper contains carbon? How do I know a fabric contains carbon? So it's very simple. You burn that paper in presence of air, you burn that fabric in presence of air. The gas that is evolved from there, if you check that with lime water and it turns milky, this proves the presence of carbon dioxide. That means the the thing that you burnt had carbon in it. Got it everyone or not? Simple or not? है ना, सिंपल है ना कार्बन का टेस्ट तो कितना। ओके, now, carbon always forms covalent compounds. This is a very important question. Pre board में जब ये पहली बार चैप्टर इंट्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। Why does carbon always form a covalent compound? आयनिक क्यों नहीं बना पाता है? Why can it never donate 4 electrons or accept 4 electrons? This is written in this paragraph, जो आपको exactly ऐसे ही लिख कर आना है। तो ध्यान से सुनो और समझो, why is it making covalent compounds? शेयरिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डोनेट भी नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। ऑल 4 उससे डोनेट भी नहीं होंगे। क्या है नंबर? 6 नंबर पे आता है, 2,4 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे, ताकि उसकी जो वैलेंस शेल है, ऑक्टेट है, उस वो कंप्लीट हो जाए,
और या फिर उसे 4 एक्सेप्ट करने होंगे ताकि ये वैलेंस शेल बन जाए और इसमें 8 हो जाए। बट ये दोनों ही केसेस नहीं कर पाता। व्हाई इज दिस इज रिटन इन दिस पैराग्राफ, और एग्जैक्टली इसी तरीके से नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। Atomic number is 6, which means there are 6 electrons in the carbon atom. Electronic configuration thus comes out to be 2, 4, and outermost shell mein there are 4 electrons. Since carbon has 4 electrons in its octet, so it should either lose 4 electrons or gain 4 to make inert gas electronic configuration and become stable. Right? है ना? सब एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि उन्हें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। Now, carbon atom is very small, due to which outermost electrons are strongly held by the nucleus. बहुत छोटा है एटम का स्ट्रक्चर, साइज बहुत छोटा है। तो जब साइज बहुत छोटा होता है तो अंदर से जो चीज बाहर को अट्रैक्ट कर रही है, उनमें डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इंटरनल फोर्स बाहर की चीजों को बहुत स्ट्रांगली हेल्ड किए हुए है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ रखा है, इज इट नॉट वेरी टफ टू गेट दोज इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट? है ना बच्चे? So it is not possible to remove 4 electrons from the carbon atom to give it the inert gas electron arrangement. It is also not possible to add 4 now. तो अभी सबको समझ में आया पहले तो कि आप जो सेंटर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसने इतना स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि साइज बहुत छोटा है कार्बन का। तो उतना स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, डोनेट तो हो ही नहीं सकते। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कैंसिल हो गया, कोई चांस नहीं है उसका। Now it is not possible to add as many as 4 electrons to the carbon atom due to energy considerations and acquire inert gas configuration. It is obvious that carbon atom always have to acquire the inert gas structure of 8 electrons in its outermost shell by sharing electrons. पहले इसे समझते हैं। What is energy considerations? अब एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से आप ऐसे समझे बेटा, इफ आई एड एन इलेक्ट्रॉन टू द स्ट्रक्चर, उसमें नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, 4 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, 6 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, ये डिसबैलेंस हो जाएगा और इतनी एनर्जी कार्बन का एटम होल्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है? तो इसीलिए आप अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने की कोशिश करोगे, वो उसे स्पिल कर देगा अगेन। आप उसमें ऐड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका सेंटर कैन नॉट बैलेंस इट। तो इसीलिए एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से कार्बन डज नॉट इवन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ना तो वो डोनेट कर पा रहा है, ना वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब इट विल एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ओनली बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद समवन। आ I रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? Ma'am, I didn't understand energy consideration part. बेटा एनर्जी कंसिडरेशन इज दैट मच ऑफ एनर्जी इट कैन नॉट हैंडल। वो क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है ना, साइज बहुत छोटा है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्टेंस बैलेंस नहीं कर पाएगा। जैसे एक आधे इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जैसे हम लिथियम में बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, साइज तो उसका भी छोटा है ना? तो एक आधे इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन एक्सेप्टेंस हो सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना इज वेरी टफ विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ वेरी स्मॉल साइज। तो इसीलिए एनर्जी कंसिडरेशन रीजंस की वजह से वो उन 4 को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज मेक this inert gas electronic configuration by sharing 4 electrons. Got it or not? जल्दी से इसको नोटबुक में लिख दो और स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। जल्दी जल्दी से। Okay, bache. Moving forward, now we need to study the other property, another property of carbon, that is carbon is tetravalent. The word tetra means 4, valent means valency. So it has got 4 valency. उसकी 4 वैलेंसी है, मतलब +-4, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या शेयरिंग करेगा, राइट? तो हम उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ये रहा
एक कार्बन को सेंटर में ड्रॉ करेंगे और उसकी 4 आर्म्स ड्रॉ करेंगे, showing that it has got 4 reactive sites. 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन ऑल 4 कॉर्नर्स, और इस तरीके से ड्रॉ करना मींस इट हैज गॉट 4 ओपन साइड्स। तो यहाँ से वो 4 अदर इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर सकता है टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। राइट बच्चे, क्लियर है ना? अ कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, उसको 4 और चाहिए टू अचीव स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा of 4 electrons at 4 different sites, right? That is why it is called as it is tetravalent. Tetra means 4, valent means valency. Clear बच्चे? चले next. Next property we need to discuss here is self combination, also known as catenation. Now, why is carbon so unique? और भी बहुत सारे elements हैं जो sharing करते हैं. Why has carbon such a wide variety of compounds? Because it has got a unique property called as catenation, which is वो कार्बन टू कार्बन की ही लॉन्ग चेन्स बना सकता है, दैट टू विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बीइंग स्टेबल। अभी आप पढ़ेंगे ऐसे भी होगा कि कार्बन के 17 एटम्स एक साथ कंबाइंड है, 37 एक साथ कंबाइंड है, 87 एक साथ कंबाइंड है। तो कार्बन की लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, कार्बन टू कार्बन की लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, और वो भी स्टेबल स्टेबल चेन्स बन जाती हैं। और इसी के अंदर वेरिएशंस भी आती हैं जिससे कार्बन के नए नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इट इज एक्चुअली सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, वेरिन या सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, जहां वो सेल्फ लिंक करके भी लॉन्ग चेन्स में भी स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज catenation. Because of this unique property only, carbon has got wide variety of carbon compounds. पढ़े अभी इसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इट्स सेल्फ, एटम टू एटम, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। लंबी लंबी चेन्स बन जाएंगी कार्बन की, कार्बन से कार्बन को ही जोड़कर। बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स है ना, अगर आप उन्हें सेल्फ लिंक करो तो बहुत ज्यादा लंबी चेन्स नहीं बना सकते। तो कार्बन ऐसा है जो लॉन्ग चेन्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबली आपस में कंबाइन करके। इसीलिए कार्बन के इतनी वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल C8H18, जो इसमें 8 कार्बन आपस में लिंक्ड है ना? एंड दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? एन important carbon compound. And some of the organic compounds like starch and cellulose contain hundreds of carbon atoms. स्टार्च के अंदर तो hundreds of carbon compounds हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है। The property of self combination of carbon atoms to form long chain is useful to us because it gives rise to an extremely large number of carbon compounds or organic compounds. और कार्बन नया जुड़ता है, एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है, और एक कार्बन नया जुड़ता है, नई प्रॉपर्टी आ जाती है। और इनफैक्ट अगर मैं ऐसे कहूं कि ये एक कार्बन है, ये कार्बन कंपाउंड है, इस तरीके से जुड़ा है, अगर मैं इस कार्बन को उतार कर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो नाउ दिस इज नॉट द सेम कार्बन कंपाउंड, इट इज अ न्यू वन। तो सेल्फ लिंकिंग का पैटर्न भी चेंज किया, देन द थिंग फॉर्म्ड इज डिफरेंट। गेटिंग इट और नॉट बच्चे? तो आप उन्हीं कार्बन्स को ही डिफरेंट रीअरेंजमेंट से भी नए कंपाउंड्स बना सकते हो, बाय एडिंग इवन वन कार्बन कंपाउंड यू हैव मेड समथिंग डिफरेंट। तो इस तरीके से कार्बन बहुत वेरिएशन शो करता है और बहुत लार्ज कार्बन कंपाउंड्स बना देता है। आ गई बेटा बात इतनी समझ में सबको कि नहीं आई? ठीक है। दिस इज बिकॉज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम एक्ट्स एज अ बैकबोन टू विच अदर एटम्स कैन अटैच इन नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप सबने अब मिथेन इथेन का नाम तो, मिथेन इथेन ब्यूटेन प्रोपेन तक के नाम आप 8th क्लास के कोल एंड पेट्रोलियम और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आपने पढ़ लिए थे, पढ़े थे। यहाँ पर मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में फर्क क्या है? मिथेन इज अ सिंगल कार्बन विथ 4H, ethane is 2 carbon with 6H, propane is
3 carbon with 8 H. Butane is 4 carbon 10 H. क्या हो रहा है, एक कार्बन ही तो बढ़ रहा है, लेकिन एक कार्बन ही बढ़कर उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग कर देगा, वो एक बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। गेटिंग इट और नॉट बच्चे? तो कार्बन में ही सेल्फ लिंकिंग होती जाती है, जिसकी वजह से वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, द कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हालांकि अगर आप कोवलेंट कंपाउंड्स को आयनिक से कंपेयर करो तो आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड्स आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट। कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो आसानी से ब्रेक नहीं होते। द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय द कार्बन एटम्स इज देयर स्मॉल साइज। एवरीवन प्लीज राइट दिस। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। Due to the small size of carbon atom, their nuclei hold the share pair of electron between atoms strongly, leading to the formation of strong covalent compound. लिखो जल्दी से इस बात को सब, और इसे एग्जाम में ऐसे ही इन्हीं वर्ड्स में ही लिख कर आना है। नो कुकिंग अप योर ओन स्टोरीज प्लीज। तुम्हारा बच्चा अभी तक पावर रिज्यूम नहीं हुई? Yes, ma'am. होगी ma'am. Just give me 2 minutes to turn my camera on. आज ग्रिशा भी नहीं है क्लास में, आज सारा भी नहीं है क्लास में, और कौन नहीं है आज? बस नहीं, आज अभिनव भी नहीं है क्लास में। 3 बच्चे, और तुम्हारा हाफ एब्सेंट है, हाफ प्रेजेंट हाफ एब्सेंट। चले अभी आगे। ऋषा, आर यू नॉट टेकिंग नोट्स बेटा? Taking running notes. I wrote the key points. I'll बेटा make these proper ones these after. हाँ, these words are very important बच्चे। your answers should be in the same scientific manner. Yes, ma'am. Now the carbon atom also forms, अच्छा this, so we have the formation of strong bonds by carbon atoms among themselves and with other elements makes the carbon compounds exceptionally stable. ठीक है, चले आगे। No other element exhibits the property of self combination known as catenation to extent seen in the carbon compounds. Silicon, आप देख सकते हो सिलिकॉन कंबाइन करता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इतनी लॉन्ग चेन्स कंबाइन नहीं कर सकता वो। Silicon element shows some catenation properties due to which it forms compounds with hydrogen having chain up to 7 or 8 silicon atom only. But due to weak bonds, these compounds are unstable. इससे बड़ी चेन भी नहीं बनेगी, अनस्टेबल कंपाउंड्स है, तो 7-8 तक तो वो मैनेज कर सकता है समहाउ। ठीक है, चले अभी आगे। नाउ occurrence of carbon we need to study. One is the free state, another is the combined state. Carbon occurs in nature mainly in two forms, diamond and graphite. These are called as allotropes of carbon. मतलब कार्बन की ही प्योरेस्ट फॉर्म्स है, बट दे आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। गॉट इट बच्चे? समझ में आ रहा है? व्हाई आर यू ऑल नॉट शेकिंग हेड्स टू शो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड वन freshly discovered one is Buckminster fluorine, जिसकी अभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। अभी इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडीज अभी भी चल रही हैं, बट वी नो दैट दिस इज वन मोर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसका की स्ट्रक्चर जो है इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ फुटबॉल। ठीक है, और चले अभी इनको स्टडी करें, कार्बन के कंपाउंड्स एलोट्रोप्स को। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी डायमंड एंड ग्रेफाइट, विच आर टू
Allotropes of carbon. Allotropes मतलब it is made up of carbon only. So purest forms of carbon. तेजस सुन रहा है बेटा कि चला गया किसी और वर्ल्ड में? जितना पीछे जाके आराम से बैठ गया था, ऐसे लग रहा था मूवी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मूवी में थोड़ा एक्शन होना चाहिए, है ना? बुलाओ मम्मी को एक्शन के लिए। बना देते हैं इस बना देते हैं अब इस पार्ट ऑफ द मूवी को एक थ्रिलर। नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो बुलाओ, फोन करूं? चलो फिर पढ़ लो बेटा, बोरिंग ही सही, काम यही आएगी मूवी। चले अभी आगे पढ़े बच्चे। Miss, ma'am, I have one clarification. So free state means it is existing as an element, and combined state means existing as a compound. यस ओके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में द वन आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट इज डायमंड एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग ग्रेफाइट। दीज आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, इनमें और कोई एलिमेंट नहीं होता, पर फिर भी दे आर वर्ल्ड अपार्ट्स। डायमंड is the hardest substance known on earth. Graphite you can break with your hands. किधर ब्रेक किया हैंड से ग्रेफाइट? Pencil. पेंसिल का लेड, पेंसिल का लेड इज ग्रेफाइट राइट? तो ऐसा ब्रेक हो जाता है। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड। इससे ज्यादा हार्ड अभी हम इंसान कुछ ढूंढ नहीं पाए। ऐसे ही डायमंड क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट, दे आर डिफरेंट वर्ल्ड्स, लेकिन दोनों ही ओनली कार्बन से बने हैं। कैसे, क्या है स्ट्रक्चर का नाम? डायमंड के स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, टेट्रा अगेन मीनिंग फोर, हेड्रन मीन्स फोर हेड्स, फोर फोर साइड से इट इज अटैच्ड विद अनदर फोर कार्बन एटम्स। ये रहा सेंट्रल कार्बन, इस तरीके के स्ट्रक्चर से it will be combined with four different carbons, and every carbon like this is attached to four other carbon atoms. जैसे ये है, let's say मैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दूं, और हो सकता है कहीं ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है और ये स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा। कार्बन आपस में ही कार्बन से ही कंबाइंड है, एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स। तो आपको पिंक वंस ड्रॉ नहीं करने एग्जाम में, ओनली दिस वन is good enough to show its tetrahedron structure, that every carbon is attached to four other carbon atoms. So are there any free electrons available? When there are no free electrons, तो electricity कैसा conduct करेगा? Electricity is movement of electrons in a particular direction only, right or not? तो electricity conduct करने का तो point ही नहीं है, क्योंकि it had four open sides. वहां के जो फोर इलेक्ट्रॉन्स थे, जो अपने उसके फोर इलेक्ट्रॉन्स थे, they're all engaged with other four electrons of different carbons. तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो मूव क्या करेंगे? तो इसीलिए इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? और कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनेगा कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा? बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन्स, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, सो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। गॉट इट और नॉट? विदुषी कैमरा ऑन करो बेटा। आ रही है सबको ये बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है बच्चे बात की नहीं है? अब मुझे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इज लाइक लेड स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, उसमें वन कार्बन इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम्स ओनली। किस तरीके से देखो, इन्हें हेक्सागोनल रिंग्स कहते हैं बेटा, हेक्सागोनल रिंग्स।
एक इसको थोड़ा सा ये एक हेक्सागोनल रिंग है, एक और रिंग यहाँ बनाए, दिख रही है बेटा ये क्लियर? तो चलो इस कार्बन को स्टडी करते हैं, एक कार्बन को, ये रहा ये एक कार्बन, 1 2 और 3, 3 अलग कार्बन से कंबाइंड है ना बच्चे? 3 अलग कार्बन से कंबाइंड है और साइड्स तो 4 थी, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इज फ्री। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस से अलग एक लेयर से कंबाइंड है। ये देखो मैंने एक हेक्सागोनल रिंग और बना दी यहाँ पर, और ये जो कार्बन से कार्बन का एक वीक फोर्स हो गई, तो 3 आर्म्स तो इसकी यहाँ बिजी है, 1 2 3, और एक वीक से दूसरी लेयर से अटैच्ड है। आपने पेंसिल के लेड को फील किया है? बड़ा स्मूथ सा स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना? स्लिपरी फील होता है उसमें, स्लिपरी, इसीलिए वो लुब्रिकेंट्स की तरह भी यूज होता है ग्रेफाइट। तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि 2 लेयर्स है, एक हेक्सागोनल रिंग ऊपर, एक नीचे, ऊपर का एक स्ट्रक्चर, नीचे का एक स्ट्रक्चर, और वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है। गॉट इट और नॉट बच्चे? और स्लिप क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वीक फोर्सेस हैं, ये कभी अटैच हो जाती हैं, कभी डिटैच हो जाती हैं, उसकी वजह से दिस स्ट्रक्चर है स्लिपरी। तो अब यहाँ लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसे थोड़ी सी एनर्जी दूं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने लगेगा ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे तो ऑफ कोर्स दिस शुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट और नॉट? तो व्हाट इज दिस? दिस इज टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन का अरेंजमेंट इन hexagonal ring, sorry, is making graphite, and the tetrahedron structure is making diamond. This makes this weak van der Waals forces here makes it slippery, soapy to touch, used as a lubricant, free electrons, conducting electricity. So it is because of their different structures, उनकी इतनी varied properties आ रही हैं। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अभी हम ये क्या है? ग्राफाइट हम ये ग्राफाइट के स्ट्रक्चर को बोलते क्या है? डायमंड इज टेट्राहेड्रॉन, ग्राफाइट इज हेक्सागोनल रिंग्स बताया तो बेटा, हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है, ओके। तो जैसे समझे डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंस है, चमक है, शाइन है, क्वाइट हैवी, बहुत हैवी है ये, इज एक्सट्रीमली हार्ड, it is the hardest natural substance known, it does not conduct electricity, it burns on strong heat to form carbon dioxide. Why is this property like this here? Because it is only carbon, no, you will burn it, carbon dioxide ही तो बनेगा बच्चे, और कुछ तो बन ही नहीं सकता क्योंकि और कोई एलिमेंट उसमें है ही नहीं, कार्बन ही वो अलोन है, ऑक्सीजन से कंबाइन होते ही CO2 it will form. If we burn diamond in oxygen, then only carbon dioxide gas is formed as, and nothing is left behind because diamond is only carbon. Who in the world would burn carbon? I don't know. है ना? I would तो never do that. So अगर हम वो जो गैस फॉर्म्ड है उसका लाइम वाटर टेस्ट करें तो क्या होगा? It will turn milky क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वहां पर, and it is represented as only C क्योंकि बना ही सिर्फ C से। Now on the contrary to this, what is graphite? देखना है, हाय ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना डर्टी लग रहा है ना? नहीं अच्छा लग रहा ना ये?
बट ये भी सिर्फ कार्बन है. इट्स अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस. वो ट्रांसपेरेंट था, वो शाइनी था. इट इज लाइटर देन डायमंड. डायमंड से लाइटर है. इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल. It burns again, giving only carbon dioxide. Why? Because it is only made up of carbon. If we burn graphite in oxygen, then only carbon dioxide gas is formed, and nothing is left behind. This shows graphite is made up of only carbon. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इसका भी लाइम वाटर टेस्ट करोगे, मिल्की होगा. इसका भी सिंबल सिर्फ सी है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? सिंपल है. ठीक है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड है उसका. तो आप एग्जाम में इतना भी बनाएंगे चलेगा. जस्ट दिस मच वुड ऑल्सो डू. गुड ठीक है, ये इवनिंग मैम. पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. हाँ जी बेटा जी. Good evening. आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, रीड करना, नोट्स बनाना. यहाँ तक यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट तक आपको खुद से करना है. बकमिंस्टर फ्लोरेन को मैं एक्सप्लेन करूंगी. इट इज द ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स एंड पेंटागोनल रिंग्स. देखो ध्यान से, ये एक पेंटागन है बीच में. इमेजिन एवरी वर्टेक्स टू बी अ सी. और हर एक पेंटागन के साइड्स में इट इज अ हेक्सागोनल रिंग. देखो, हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग अगेन. बिल्कुल फुटबॉल स्ट्रक्चर है ना. एंड द अमेजिंग पार्ट इज कि इसको किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था. बकमिंस्टर फ्लोरेन इज नेम्ड आफ्टर एन आर्किटेक्ट. तो क्या है वो, इसे पढ़ना. ओके, बकमिंस्टर फ्लोरेन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. यस, इट इज ओनली 60 कार्बन कंपाउंड. सिर्फ 60 कार्बन होते हैं. काउंट करके देख लेना, फुटबॉल के वर्टिसेस वाले, और या फिर स्ट्रक्चर को, एवरी पेंटागन ट्रैप्ड बाय हेक्सागन्स. तो इसे आप स्टडी करोगे तो 60 कार्बन ही निकलेंगे इसके अंदर. ठीक है, बाकी हम इसके बारे में जो बात करेंगे, अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द डोम ही डिजाइंड. ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. यहाँ तक पढ़कर आना है सबने, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अभी तक भी बेटा जी, अगर मैं इसकी एग्जाम में वेटेज लगाऊं, जो टॉपिक आपने अभी तक किया है, आ भी गया तो 1 मार्क. अगर आ गया तो 1 मार्क. बस अभी तक जो थ्योरी की है उसका इतना ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में. और बहुत बहुत जोर लगा के इसमें से बना दोगे तो 2 मार्क्स का. इससे ज्यादा तो इस साइड से पेपर बनेगा ही नहीं. अभी तो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, कोर है, वो शुरू भी नहीं हुआ. तो इसे फिनिश कर दो अच्छे से पढ़ के, कि इसका बर्डन तो खत्म हो. इम्पोर्टेंट टॉपिक बाद में शुरू करेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन. सी यू Ma'am, I had one एट doubt. 8:30 फॉर मैथ्स क्लास नाउ.